Hello, good morning, students. We are studying our book First Rainbow, and yesterday we completed our fifth chapter. That was India's Gift to the World, Part 2. India's Gift to the World had two parts. Part 2 we completed yesterday, Purity is Power, and today we are starting Lesson 6 on reading in relation to literature. साहित्य के संबंध में पठन क्रिया पर विचार कि हम पढ़ने की जो क्रिया है हमारी ये कैसी हो और साहित्य के बारे में कैसी हो, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर रीडिंग एनी लिटरेरी बुक। जब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो व्हाट शुड बी द वे ऑफ रीडिंग। सो मैन स्ट्रेस इज ऑन रीडिंग एंड दिस लेसन is written by Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, he was a great literarian. Here's his photograph before you. Lafcadio Hearn. His full name was Patrick Lafcadio Hearn. He was born on 27 June 1850 and died on 26 September 1904, also known by the Japanese name Kiyozumi Yakumo. He was a writer known best for his books about Japan. He wrote a lot about Japan, especially his collections of Japanese legends and ghost stories such as Queden stories and studies of strange things in the United States. Hearn is also known for his writings about the city of New Orleans based on his 10-year stay in that city. He wrote about that city, New Orleans, city of New Orleans. So such was this personality, Lafcadio Hearn. He wrote this writing. It is his writing, his creation, and what is there in it we just study, we just read about it. So he is Lafcadio Hearn, a great writer. He was born in Greece. The place of his birth was on an island near Greece, but instead he was in Japan. He married a Japanese woman. He had 4 children and became a naturalized Japanese citizen. And there he died. He died in Japan. Okay. So this is about him. Come on, we will read more about him when we read about the writer and his work, about the lesson. Lafcadio Hearn is a international fame writer, author. Lafcadio Hearn, 1850-94, an author of international fame and is best known for his writings about Japan because he lived in Japan towards the end of his life. Actually, he lived only for 54 years. In this essay, Lafcadio Hearn defines the concept of reading with its meaning. What is reading? What is the meaning of it? What is the process of reading? And what should be the aim of reading? The author makes a distinction between the motives of a great critic, samalochak, and a common person. A common reader and a great critic. So he wants to make a distinction. He makes a difference between the motives of a great critic
What are the motives, what are the targets, what are the aims of a great critic and a common person? A common person doesn't read for a very high motive, very high target. He reads for reading only. But a great critic doesn't read for reading. He reads more deeply. His aim of reading is entirely different. He states that a great and scientific book contains universal truth and sublime ideas. He writes about a great scientific book, great and scientific, any book that is great or that should be called great, contains universal truth. In such a book, there are universal truths जो हर जगह लागू होते हैं. इंग्लैंड में लिखा हुआ है फिर भी भारत में लागू होगा, भारत में लिखा है, भारत की बुक है फिर भी इंग्लैंड में लागू होगी, पूरी दुनिया पर लागू होने वाले उसके अंदर सिद्धांत होंगे. एंड सबलाइम आइडियाज, ऊंचे, सबलाइम, ऊपर उठे हुए, श्रेष्ठ, उत्तम, ऐसे विचार होते हैं उसके, जो हाई लेवल के उच्च विचार, that are applicable in every age, not only in every place, not only at every place but in every age. आज से 10,000 साल पहले भी वह ट्रुथ था, that was truth and it was sublime idea, still it is the same in every age. हर युग में उस बुक के अंदर जो यूनिवर्सल थॉट होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं. ऐसी ग्रेट बुक्स होती हैं. एट एवरी एडिशनल टाइम ए ग्रेट बुक अनफोल्ड्स टू द रीडर ए न्यू मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन दैट लीव्स ए परमानेंट impression on his or her mind, reader's mind. At every additional time, जब भी हम उसको दोबारा पढ़ेंगे उस बुक को, तो उसके अंदर जब हम झू पत्ते पलटाएंगे उसके अंदर से नए नए विचार अनफोल्ड होंगे, दिखाई देंगे हमें रीडर को, और हर बार नए मीनिंग्स और नए इंटरप्रिटेशन, नए उसके अर्थ हमको दिखाई देंगे, उसकी व्याख्याएं अलग दिखाई देगी. दैट लीव्स ए परमानेंट इम्प्रेशन ऑन हिज और हर माइंड, और उस रीडर के माइंड पर एक स्थायी इसका इम्प्रेशन पड़ेगा. तो जब भी हम किसी अच्छी पुस्तक को, एक ग्रेट बुक को पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें नए नए मीनिंग दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि फिर वो उसके अंदर ज्यादा गहराई से उसको समझने की कोशिश करेगी. सरफेशियल स्टडी, सरफेशियल रीडिंग नहीं, इस तरह का. तो ये इसके बारे में, लेसन के बारे में लिखा है. जस्ट वी आर स्टार्टिंग. अब आप लोगों को भी थोड़ा हाई लेवल रेज करना पड़ेगा अपने लेवल को. पहले कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनमें कहानियां थी, स्टोरीज थी. स्टोरीज को घटनाओं के द्वारा, चित्रों के द्वारा मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का विचार है, डिफरेंट तरह की लैंग्वेज है, वो प्योरली थॉट प्रोड्यूसिंग है, विचारोत्पादक, विचार पैदा करने वाले शब्द हैं इसके अंदर, और गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा ऊपर होकर निकल जाएगा. क्योंकि ये पर्टिकुलरली अबाउट रीडिंग है, ऑन रीडिंग ही है पूरा, और हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, और आप लोग 12वीं में हो, 12th क्लास में हो. अब आप लोगों को रीडिंग करना आना ही चाहिए. सो why is this chapter given in our course? Because we do not read seriously up to now. हालांकि सभी पर ये लागू नहीं होता, कुछ लड़के तो बहुत गंभीर होते हैं, स्टार्ट से ही किसी विषय को पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते हैं उसको, और उनके दिमाग में या उनके विचारों में उसका असर पड़ता है. तो तभी हमारा पढ़ना सार्थक होगा जब हम उस बुक को पढ़ें और उस बुक के पढ़ने पर हमारे दिमाग में कुछ उसका प्रभाव पड़े. तो वो सीधा चैलेंज कर रहा है. स्टार्ट ही इसका इस प्रकार होगा कि तुम लोग ताजुब करोगे कि वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड.
आप लोग बोलोगे कि हम तो बहुत बुद्धिमान है, हम तो 12th में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास भी पढ़े हैं हम लोग और पास भी हो गए हैं। लेकिन लवकेडियो हर बोल रहा है कि बहुत कम लोग हैं दुनिया में वो ये जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। रीडिंग ही कैसे होती है, पहली बात तो अध्ययन करना नहीं, समझना नहीं, रीडिंग करना भी नहीं जानते। हाउ टू रीड, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, बहुत सारा इस प्रकार का अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है साहित्य के बारे में। नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, बहुत अधिक अनुभव, विद लिटरेचर, नीडेड, जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो बहुत अधिक उसमें अनुभव चाहिए। इट इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड। जबकि हम पहुंचते हैं टेस्ट के ऊपर, हमारा जो साहित्य पढ़ते हैं उसका हमें कितना रुचि, हमारा टेस्ट हमारी उसके अंदर कितनी रुचि जागृत होती है और हम कितना उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, कितना उसके अंदर हम भेद कर सकते हैं, उसकी विभिन्नताओं को समझ सकते हैं कि वो चीज किस दर्जे की है, किस ऊंचाई की है। कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, ये क्षमता हमारे अंदर प्राप्त होती है, उसके लिए काफी लंबा अनुभव चाहिए, कंसीडरेबल एक्सपीरियंस, बहुत अधिक एक्सपीरियंस चाहिए। नीडेड इज है यहाँ पे, कंसीडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड, इज वर्ड है यहाँ पे, आवश्यकता होती है, दब गया है पेज इसके अंदर। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली रिक्वायर्ड, संभावना तब होती है उस चीज की प्राप्ति होने की कि हमें काफी लंबा अनुभव जब हो पढ़ने का। एंड विदाउट दीज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। इसके बिना, विदाउट दिस, इसके बिना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, असंभव होता है टू लर्न हाउ टू रीड, पढ़ाई कैसे जाए। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्यों कह रहा है कि बिल्कुल असंभव है? सिंस, क्योंकि देयर आर सम रेयर मैन, क्योंकि दुनिया में कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, रेयर मैन, रेयर दुर्लभ, बहुत कम, रेयर मैन who through a kind of inherited literary instinct, inherited, बायोलॉजी के लोग जानते होंगे, इनहेरिट जन्मजात, हमें क्रोमोसोम्स में मिला होता है, कई बार गुणसूत्रों में मिला होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाएंगे तभी वो लिटरेरी सेंस नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो हाइट ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग की। सो कुछ एक लोग होते हैं जिनके अंदर एक काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, उनके अंदर एक साहित्यिक क्षमता होती है, इंस्टिंक्ट होती है, जन्मजात गुण होते हैं, आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। कौन सी एज? 25 ईयर्स। अंदाज लगा लो तुम लोग कि वो 25 ईयर्स की एज तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोगों में एबिलिटी आ जाती है। अभी तुम लोग 0-20 हो, वो उन लोगों के लिए कह रहा है जिनके अंदर लिटरेरी टेस्ट है। सो बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जिनको 25 साल की एज पहुंचते पहुंचते लिटरेरी इंस्टिंक्ट जिनके अंदर इनहेरिटेड हो, वो एबल टू रीड होते हैं, पढ़ने में समर्थ होते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शन, लेकिन ये तो बहुत अपवाद हैं, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, अपवाद, वेरी रेयर। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। किसके बारे में बता रहे हैं? एवरेज लोगों के बारे में। आई एम स्पीकिंग अबाउट ऑफ द एवरेज। ये तो एक्सेप्शन की बात है। फॉर, क्योंकि, ऊपर आया था सिंस, का मतलब भी
ये सिंस वर्ड ऐड है, सिंस, बिकॉज, सिंस का मतलब चूंकि, यहां पर है फॉर, फॉर, फॉर का मतलब भी चूंकि, फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स, हम पढ़ते क्या हैं, अक्षरों के कैरेक्टर्स को, अक्षरों को पढ़ते हैं, ऑफ द टेक्स्ट, हमारे सामने जो बुक है उनके लेटर्स को पढ़ते हैं हम लोग, उसके टेक्स्ट जो लिखा हुआ है बुक हमारा, उसके अक्षरों को पढ़ते हैं। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन ट्रू सेंस, ये बिल्कुल नहीं होता कि हम लोग पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ लिया, हमारे सामने कोई किताब है उसको पढ़ लिया, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अक्षर, उन अक्षरों को हमने रीड कर लिया, तो इसका मतलब बिल्कुल पूरे सच्चे सेंस में ये नहीं है कि हमने उसको रीडिंग कर ली। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स, हम लोग जब पढ़ते होते हैं ना तो हमको लगता है कि हम कुछ शब्दों को पढ़ रहे हैं, रीडिंग वर्ड्स, ध्यान रख लेना, ये गंभीर तरह का विचारोत्पादक पाठ है, मैंने कहा था ना कि ये काफी थॉट प्रोवोकिंग लेसन है, पेशेंस रखना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा कि यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स, तुम ओके, हम लोग वर्ड्स ही पढ़ते हैं, पर यहाँ वर्ड्स से मतलब नहीं है, वहां उसके सेंस से मतलब है कि हम उसको, उसका अर्थ कितना ग्रहण करते जा रहे हैं, क्या हमारी नजरें अक्षरों में पढ़ रही है, लेटर्स पे, या वर्ड से पढ़ रही है, और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली जो अंदर पात्र हैं उन पर, इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, यहाँ तक कि हम उनका बहुत सही उच्चारण भी कर रहे हैं। वाइल योर माइंड्स आर ऑक्युपाइड विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, हम पढ़ तो रहे हैं, प्रोनाउंस भी सही कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और व्यस्त है, ऑक्युपाइड विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, ये जो पढ़ने की मैकेनिज्म है, ये जो पढ़ने की तंत्र है, मैकेनिज्म, तरीका, हाँ, ये जो प्रणाली है, तरीका, मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक हो जाती है हमारे अंदर, स्वचालित रूप से हम लोग पढ़ने लग जाते हैं एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जो हमारे ऊपर बुक्स थोप दी जाती है, पढ़ो, रीडिंग करो, पढ़ो, किताब पढ़ो, तू पढ़, क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक इंस्टिंक्ट हो जाती है हमारी, एक ऑटोमेटिक आदत पड़ जाती है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, शुरू से ही, एंड कैन बी परफॉर्म्ड, और हम पढ़ते भी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, चाहे हमारा ध्यान उन शब्दों की तरफ है या नहीं है, चाहे हमारा ध्यान उन वाक्यों की तरफ है या नहीं है, still we read them because we are forced to read from an early period of life. We are reading, we are looking at the letters, we are looking at the words also, but irrespective of attention, उसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है, ये होता है कि हम उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, irrespective of attention, बिना किसी रिश्ते के, अटेंशन के, बिना किसी ध्यान के, नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, न तो मैं इसको रीडिंग कहता हूं, टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट, सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, मैं इसको रीडिंग नहीं कहता, नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, कोई भी किताब है, पुस्तक है, उसके अंदर से कोई नरेटिव है, कोई भी मैटर है, उसको मैं अलग से छांट करके अगर मैं पढ़ता हूँ, फ्रॉम द रेस्ट, सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, कोई भी आदमी बड़ा उसका आनंद उठा रहा है, उसको पढ़ करके लग रहा है आनंदित हो रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है वो कंटेंट पढ़ने में, अम्यूजमेंट हो रहा है उसको, और इन अदर वर्ड्स
टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, या फिर वो बुक कैसे पढ़ेगा, एक कहानी के तौर पे, एक कथा है, घटना है कोई, उसको पढ़ लिया। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way. Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way. इसी तरह से रीडिंग किया जाता है, या तो एक कहानी के तौर पे उसको पढ़ लिया जाता है, या सोचा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उसका आनंद ले रहा हूँ, अम्यूजमेंट कर रहा हूँ उसका। Thousands and thousands of books are bought every year. हजारों पुस्तकें लोग खरीद लेते हैं। Every month, I might even say every day. हर दिन पुस्तकें खरीदी जाती है बाजारों में। By people who do not read at all. वो लोग खरीदते हैं जो उनको बिल्कुल नहीं पढ़ते, बस केवल खरीदने के लिए खरीदते हैं। They only think that they read. वो केवल ये सोचते हैं कि वो पढ़ते हैं, उनके दिमाग में आइडिया है कि हम पढ़ने वाले हैं। They buy books just to amuse themselves. वो किताब खरीदते हैं अपने आप को आनंदित करने के लिए। बुक खरीद ली, 2-4 पत्ते पलटा लिए, उसका पढ़ लिया, थोड़ा उसका आनंद ले लिया उसका, एंड बाकी क्या सोचेंगे, themselves to kill time. ये सोचते क्या रहे, टाइम कैसे पास करूं, इस लिहाज से उसको पढ़ते हैं, kill time. As they call it, वो खुद ही कहते हैं, in 1 hour or 2, 1 या 2 घंटे तक उस किताब को पढ़ लेते हैं। Their eyes have passed over all the pages, सारे पेजेस के ऊपर उनकी निगाह चली जाती है, and there is left in their minds a vague idea or two about what they have been looking at. जब वो पढ़ चुके होते हैं किताब, तो एक हल्का सा धुंधला सा आइडिया उनके दिमाग में रहता है। 1 या 2 ऐसे छोटे मोटे आइडियाज उस किताब के दिमाग में रहते हैं कि जिस पर वो अपनी निगाह डाल रहे थे। They have been looking at, and this they really believe is reading. और उसको समझ लेते हैं कि हमने पढ़ लिया है। Nothing is more common than to be asked. Nothing is more common than to be asked. ज्यादातर इस प्रकार से पूछते हैं लोग, बड़ा अपना बताने के लिए कि हम बड़े पढ़ाकू हैं, किताब पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्या पूछते हैं, हैव यू रेड सच ए बुक, और टू हियर समबडी से आई हैव रेड सच एंड सच ए बुक। बड़ा घमंड से बोलते हैं, विद प्राइड। कुछ लोग प्राइड से पूछते, क्या तुमने किताब पढ़ी है, तो बोले, और कुछ बोलेगा हाँ मैंने ये किताब पढ़ी है। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली। सारे लोग उतनी गंभीरता से नहीं होते हैं। आउट ऑफ 1,000 पर्सन्स, हजारों में से कोई एक आदमी होगा, हु से आई हैव रेड दिस और आई हैव रेड दैट, मैंने उस पुस्तक में ये पढ़ा है। पुस्तक पढ़ी है बोल देंगे, मैंने ये किताब पढ़ी है, बट व्हाट हैव यू रेड फ्रॉम दैट बुक, व्हाट कंटेंट इज स्टिल इन योर माइंड, व्हाट जिस्ट हैव यू टेकन आउट ऑफ दैट बुक. That is the main thing of reading, about reading. So I have read that. There is not one, perhaps, out of 1,000 persons, there is not one, perhaps. हजारों में से एक भी नहीं होता, but होते हैं, हजारों में से 1 या 2 होते हैं, who read the book seriously, even they mark the lines which they read, and they remember the things out of that book. They mention their reading also. We can't say कि there are no at all person in the world who do not read at all, who reads at all. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग मैंने भी देखे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाकू होते हैं, वो RSS रीडर होते हैं, और वो मेंशन करते हैं कि हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ तक कि उनको उस बुक का पेज नंबर भी मालूम होता है, और जिस लाइन को वो पढ़ चुके होते हैं उस पर पेंसिल के द्वारा मार्क भी क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सो ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत रेयर। आउट ऑफ 1,000 पर्सन देयर इज नॉट वन
इक्का दुक्का भी नहीं होता है। Who is able to express any opinion worth hearing, जो बता सके किसी बुक के बारे में ओपिनियन, अपनी राय पढ़ने के बाद, ओपिनियन वर्थ हियरिंग अबाउट व्हाट ही हैज बीन रीडिंग, कि उसने क्या पढ़ा है। मैनी एंड मैनी अ टाइम, कई कई बार ऐसा होता है, आई हियर स्टूडेंट्स से दैट दे हैव रेड सर्टेन बुक्स, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि हमने ये किताब पढ़ी है, बट इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, उन बुक में उठा करके एक आध दो प्रश्न पूछ लिए इधर उधर से कहीं से बुक में से, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, दे आर अनेबल टू आंसर, और at best they will only repeat something that somebody else has said about what they think that they have been reading. कभी कभी किसी और द्वारा सुनी हुई बात को भी कह देते हैं, किसी और ने पुस्तक पढ़ी है तो बता देंगे कि मैंने पढ़ा है, और किसी और के द्वारा सुनी हुई बात को भी पता है चाहे वो खुद ने देखा नहीं हो, somebody else has said about what they think they have been reading, but this is not peculiar to students. ये कोई स्टूडेंट्स पर ही विशेष बात नहीं है, सभी पर लागू होता है, not only with students. It is in all countries the way that the great public devours books. होता ये कि जो आम पब्लिक है, ग्रेट पब्लिक, मैक्सिमम पब्लिक उन किताबों को डिवोर करती है। डिवोर करना मतलब निगलना, निगल लेना, सीधा सीधा उतार लेना, बिना चबाए, बिना उसका स्वाद लिए हुए। पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ा है, पर उसको पर्टिकुलर पॉइंट उनको मालूम नहीं होता, पर्टिकुलर जो अंदर की स्टोरीज है, पर्टिकुलर कोई घटनाएं हैं, वो सभी याद नहीं होती, वो केवल निगल लेते हैं। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक, बात वही चल रही है वापस, वो स्टार्ट में उसने लिखा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्रिटिक एंड अ कॉमन रीडर, कॉमन पर्सन। सो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द common person is chiefly that the great critic knows how to read, because the attention of the critic will always be on the mistakes and the important points of the text or in the book. So he will try to go deeply to find out the important points on which he can give his own comments, he can give his own ideas and views for his criticism. So great critic is always a good reader because he goes deeply in the book. That is the thing. So great critic knows how to read, and that the common person does not. The common person does not. The common reader does not. वो नहीं जानता है. No man is really able to read a book who is not able to express an original opinion regarding the contents of a book. This is the thing. ये चीज है मैन, किसी पर्टिकुलर बुक के कंटेंट्स के बारे में अपना ओरिजिनल ओपिनियन जब तक व्यक्त नहीं कर सकता तब तक वो नहीं पढ़ा है उसने, तब तक नहीं पढ़ा है उसने। ओरिजिनल चीज को जो पढ़ा है उसको ऐसे कैसे बता देना भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बट गिव आवर ओन कमेंट्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ द बुक, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द main story of the book. If one gives his own original opinion, whether in favor or against, critically giving the lacks, mistakes or good things, qualities of the book, it means he has read it very seriously and has tried to understand the contents very seriously. That would be called right reading. No doubt you will think that this statement of the case confuses reading.
ओके, हम समझते हैं कि हम तो पढ़ने वाले हैं, कैसे कह दिया लॉफ्केडियो हार्ट ने कैसे बोल दिया कि हम पढ़ना नहीं जानते हैं, हमें कंफ्यूज कर दिया रीडिंग के बारे में. रीडिंग विद स्टडी, यू माइट से व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, you read history, you also read philosophy or science, then we do read very thoroughly, studying all the meanings and bearings of the text. Without understanding, without reading the meanings or without bearing the text, how can we go through slowly and thinking about it? हम पढ़ते भी हैं, ध्यान से पढ़ते भी हैं, स्लोली पढ़ते हैं, थिंक करते हुए, उसको थिंकिंग करते हुए पढ़ते हैं. This is a hard study. But when we read a story or a poem out of class hours, we read for amusement. So far we are in the class, we read it seriously, understandingly. But when we go out of class hours, we read for amusement only. Amusement and study are two different things. Here he is differentiating, he is giving difference between amusement and study are two different things. I am not sure that you all think this. Lafcadio is saying कि तुम सभी इस प्रकार से नहीं सोच रहे हो जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो. लेकिन जो लड़के हैं, जवान लोग हैं, वो लगभग ऐसे ही सोचते हैं. As a matter of fact, every book worth reading ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read. कोई सी भी बुक को, every book should be read in the manner as a scientific book is read, not simply for amusement. And every book worth reading should have the same amount of value in it. जब हम कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर उतनी मात्रा, उतना ही महत्व उसका दिया जाना चाहिए. In it that a scientific book has, जैसा कि एक वैज्ञानिक बुक में होता है. Though the value may be of a totally different kind. अगर हम साहित्य पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिटरेचर या कोई भी जनरल बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कंटेंट्स अलग होंगे, वैल्यूज अलग होगी, हर चीज अलग होगी. बट आवर व्यू शुड बी completely like a scientific book, as we are studying the scientific formulas or important information regarding any experiments or such like that. For after all, a good book of fiction or romance or poetry is a scientific work. The writer is saying that any novel or any romantic writing or a poetry, that too is a scientific work. It has been composed according to the best principles of more than one science. इनका जो composition हुआ है, जो writing हुई है, that is according to the best principles of more than one science. Every literature, every writing has got its own principle, own formulas, based on some principles or formulas. So that should be given seriousness, importance, but especially according to the principles of great science of life, the knowledge of human nature. उनका जो साइंस है, वो साइंस कौन सा है? साइंस ऑफ लाइफ. फिक्शन, रोमांस और पोएट्री, that gives the science of life and knowledge of human nature. Knowledge of human nature is there. Okay, so it is not less valuable than a scientific book. So he gives worth to all the books, whether it may be of romance, it may be a fiction or a story or a poetry. That all the things should be given the same importance as we give importance to the science books or scientific books.
Okay, I stop it today up to here. We will start the next paragraph tomorrow. Till then, you read it, try to understand the difficult words and vocabulary and questions. I will send you separately. Okay, all the best.